Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class. Today I am going to deliver a lecture on concept of teaching. Introduction of teaching. Teaching is an art and an academic process. In this process, students are made motivated by a number of ways to learn. Teaching is an important part of the process of education. Teaching is a communication between two or more persons. Teaching is the way which affects the psychology of students towards subjects. टीचिंग एक फ़न है। टीचिंग मालूमात देने और इल्म सिखाने का नाम है। टीचिंग का मतलब है टीचर का स्टूडेंट्स को कोई चीज़ टीच करवाना, पढ़ाना या कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें कोई टॉपिक या लर्निंग मटेरियल जिसके ज़रिए टीचर कोई मैसेज डिलीवर करता है। टीचिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। टीचिंग प्रोसेस के ज़रिए स्टूडेंट्स उस्ताद के बिहेवियर, उसके एटीट्यूड और उसके किरदार से मुतासिर होकर मुख्तलिफ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ द टीचिंग. Teaching derived from to teach, to which means to instruct, to give information. The occupation, profession or work of a teacher. Ideas and principles taught by an authority. It means the process in which individual makes something known to an other individual. टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, टीच करना, सिखाना, इल्म सिखाना, इल्म देना, कोई फ़न, नज़रिया या हुनर मुंतकिल करना, स्किल्स को सिखाना। टीचिंग के अमल से मुख्तलिफ नज़रियात, आइडियाज़ और तसव्वुरात, डिफरेंट स्टडीज़ जो है एक्सपीरियंसेस, रवैयों के ज़रिए स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन मुंतकिल करना। According to Adam, teaching is a bipolar process where one pole is teacher and second pole is student. Teaching is one-way process where teacher teach and students learn. Teaching is a relationship between student and teacher. Teaching is a tripolar process. Teaching is a teacher, subjects and student. Concept of teaching. Teaching is an active process in which one person share information with other to provide them the information to make behavioral changes. Teaching is always directed towards a particular purpose and learning. Teaching provides opportunities to students so that they can bring behavioral changes in their personalities. Teaching basically is a process where teacher can use to transfer his skills, knowledge and experiences to facilitate the learning of the students. With the help of different factors, teaching methods, approaches, teaching plans and strategies, motivations, a teacher can make his teaching more effective and interesting. टीचिंग इज़ एन आर्ट जिसके ज़रिए टीचर बहुत से टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में तब्दीली लाता है। टीचिंग इज़ ए स्किलफुल एक्टिविटी। उस्ताद के सामने डिफरेंट एबिलिटीज़ और अहलियतों के स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को सिलेक्ट करता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट टीचिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचिंग वो होती है जो स्टूडेंट्स के लिए दिलचस्प, आसान, दिलकश, देरपा और लॉन्ग टर्म हो, जिससे सीखते हुए स्टूडेंट्स जो है वो खुशी महसूस करें और इसमें इंटरेस्ट लें और अपने पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज ले आने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. टीचिंग इज़ अ एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग and instruction to the learners in the classroom situation. Old concept of teaching. इससे मुराद सिर्फ मालूमात, नॉलेज की मुंतकली तक महदूद होता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इज़ बाइपोलर एंड टीचर सेंटर्ड, जिसमें स्टूडेंट्स की ज़रूरियात और इंटरेस्ट, उसके ख्यालात और उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र का ख्याल नहीं किया जाता। देयर इज़ वन वे कम्युनिकेशन। उस्ताद पढ़ाता है और स्टूडेंट्स जो है सिर्फ उनका काम जो है वो याद कर लेना होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. Modern concept of teaching is the cause to the people to learn and acquire the desired knowledge, skills, also desirable ways of living in the society. It is a process where students and teachers, curriculum and other variables are organized in a systematic and psychological way to attain some predetermined goals. Modern concept of teaching is a student-centered teaching, जिसमें स्टूडेंट्स के ख्यालात, स्टूडेंट के नज़रियात और डिफरेंट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को का ख्याल रखा जाता है और इनके इंटरेस्ट, उनके रुझानात और उनके मेंटल लेवल के मद्देनज़र रखते हुए इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और टीचिंग को मौसर बनाया जाता है।
नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग की जो नेचर है मालूमात पहुंचाना है, जिसमें टीचर अपना जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स को मुंतकिल करता है। टीचिंग इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, टीचिंग सिर्फ एक इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं होती। इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस वेयर स्टूडेंट एंड टीचर एंड लर्निंग मटेरियल इंक्लूड होते हैं। टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट दीज थ्री फैक्टर्स। टीचिंग इज़ अ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस फॉर लर्निंग। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए और ऐसे मेथड्स पेश किए जाएँ जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वह इल्म सीखने के लिए आमादा हो जाएँ। विलिंगनेस फॉर लर्निंग, अगर स्टूडेंट सीखने के लिए आमादा नहीं होंगे तो फिर इंटरेस्टिंग जो टीचिंग है वो मौसर नहीं हो सकेगी और इंटरेस्टिंग नहीं हो सकेगी। इस तरह टीचिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होगा। टीचर को चाहिए कि वो लॉ ऑफ रेडीनेस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करवाए जिससे जो है वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल लेवल और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो एक्टिविटीज़ करवाए। प्रोसेस ऑफ गिविंग गाइडेंस, द टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तालीम का सबसे बड़ा मकसद फ़र्द के माशरे के में बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जज्बाती इस्तेहकाम अगर हम हो तो बहुत से काम अच्छे तरीके से अंजाम दिए जा सकते हैं। टीचिंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट्स के इमोशंस और उसके स्ट्रेस, उसके फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट इक़दाम करता है। डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, मुख्तलिफ माहिरीन ने टीचिंग के लिए मुख्तलिफ डेफिनेशंस और उसके नज़रियात पेश किए हैं। अकॉर्डिंग टू B.O. Smith, teaching is a system of actions intended to produce learning. H.C. Morrison 1934, teaching is an intimate contact between more mature personality and less mature one. Reburn कहते हैं teaching is a relationship which keeps the child to develop all powers. N.L. Gay 1962 stated that teaching is a form of interaction influence aimed at changing the behavioral potential of another person. Objectives of teaching, to create opportunity for different activities. टीचिंग का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को इल्म सीखने के मुख्तलिफ मौके फ्राहम करना है। टीचिंग का मकसद क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव माहौल प्रोवाइड करना होता है ताकि लर्नर्स एक आज़ाद माहौल में अपनी सलाहियतों की डेवलपमेंट कर सकें। इमोशनल ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड, टीचिंग का मकसद पीपल के जज्बात की तरबियत करना भी है। टू क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, ताकि उसके जज्बात में पुख्तगी और तवाज़ुन पैदा हो सके। प्रोवाइडिंग द नॉलेज, टीचिंग का मकसद लर्नर की नेचुरल एबिलिटी को डेवलप करना और उसकी तस्कीन करना होता है। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट टू द लर्नर टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। टीचर इफेक्टिव टीचिंग की बदौलत स्टूडेंट्स को बहुत सी मुफीद मालूमात फ्राहम करता है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू कोप विद दिस मॉडर्न टाइम।